یہ قصہ بغداد کے ایک قدیم گاؤں کا ہے جہاں ایک بڑھیا خاتون اپنے خستہ حال مکان میں رہتی تھی۔ یہ بوڑھی عورت انتہائی نیک اور رحم دل تھی۔ اس عورت کے 3 بیٹے تھے جنہیں اس نے بڑی محنت اور مشقت کاٹ کر جوان کیا۔ اس عورت کے بیٹے ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اس کا شوہر کسی روزگار کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا۔ وہاں جا کر وہ لاپتہ ہو گیا۔ کافی عرصہ گزر گیا، اس کی کوئی خبر نہ مل سکی۔ وہ عورت اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر اپنے شوہر کو ڈھونڈنے بھی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ لیکن اسے یہ امید ضرور تھی کہ اس کا شوہر ایک نہ ایک دن واپس ضرور آئے گا، اس لیے اس نے دوسری شادی بھی نہیں کی اور وہ اکیلے اپنے بچوں کو پالنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس عورت کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا۔ چنانچہ اگلے دن وہ خلیفہ کے دربار میں پہنچی اور مدد کے لیے درخواست کی۔ اس نے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا تو بوڑھی عورت نے اپنی مکمل داستان خلیفہ کو سنا دی کہ کیسے اس کا شوہر روزگار کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا اور وہاں جا کر لاپتہ ہو گیا۔ وہ خلیفہ سے کہنے لگی، اب میں اپنے بچوں کو بھوک سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں نوکری کی غرض سے آپ کے پاس آئی ہوں۔ خلیفہ رحم دل تھا، اس نے عورت پر ترس کھایا اور عورت کے پاس کوئی ہنر نہ ہونے کی وجہ سے 30 دینار ماہانہ اپنے دربار میں کام پر رکھ لیا۔ اب وہ عورت خلیفہ کے محل میں صاف صفائی کا کام کرنے لگی۔ اس عورت نے تقریباً 20 سال خلیفہ کے محل میں کام کاج کیا۔ آج اس کے بچے جوان ہو چکے تھے۔ گھر میں غریبی اور شوہر کا سایہ نہ ہونے کے باوجود بھی اس عورت نے اپنے بچوں کی پرورش میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ وقت گزرتا گیا اور اس عورت کا بڑا بیٹا جس کا نام سفیان تھا، بغداد کے ایک بڑے بازار میں وہ تاجر بن گیا، اور چھوٹا بیٹا جس کا نام دلیل تھا، اس نے ریشم کے کپڑے کا کاروبار شروع کر دیا۔ لیکن چھوٹا بیٹا بھی کم عمر ہی تھا، اس کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، وہ سارا دن گھر میں رہتا اور بوڑھی ماں کا خیال رکھتا۔ بڑے بھائیوں نے چھوٹے بھائی سے کہا، تم گھر میں رہ کر ماں کا خیال رکھو، ہم تمہارا سارا خرچ اٹھائیں گے، تم پیسوں کی فکر مت کرنا۔ شروع میں وہ چھوٹے بھائی کو پیسے دیتے رہتے، مگر جیسے ہی ان کی شادیاں ہوئیں تو انہوں نے اپنی بیویوں کے کہنے پر ماں کا گھر چھوڑ دیا اور اپنے الگ الگ گھروں میں رہنے لگے۔ دونوں بھائی اپنی زندگیوں میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ انہوں نے اپنی بوڑھی ماں اور چھوٹے بھائی کی بھی کوئی خبر نہ لی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بوڑھی عورت بیمار رہنے لگی اور چھوٹا بیٹا جس کا نام موسیٰ تھا، اس کے پاس اپنی والدہ کے علاج کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ اپنی والدہ کے علاج کے لیے ایک دن وہ اپنے بھائیوں کے پاس گیا، لیکن انہوں نے کچھ خاص مدد نہ کی۔ شام کو وہ اپنی بوڑھی ماں کے گھر واپس پہنچا۔ بھائیوں کے سخت رویے سے اپنی ماں کو آگاہ کیا تو بوڑھی عورت کا دل ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ آج وہ گزرے ہوئے وقت کو یاد کر کے رونے لگی۔ اس کو وہ سارا وقت یاد آ گیا کہ کیسے اس نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائیں اور کیسے ایک خلیفہ کے محل میں 20 سال نوکرانی بن کر کام کرتی رہی۔ انہی بچوں کی خاطر اس نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی۔ اپنی اولاد کی خاطر اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج وہ بیٹے اتنے مالدار ہونے کے باوجود بھی میرے علاج کے لیے کچھ دینار بھی نہیں خرچ کر سکتے۔ موسیٰ نے جب اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو اسے سینے سے لگایا اور دلاسا دینے لگا۔ اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں ٹھان لیا کہ وہ کیسے بھی کر کے اپنی ماں کا علاج کروائے گا۔ چنانچہ اگلے دن سورج نکلنے سے پہلے وہ کام کے لیے گھر سے نکلا۔ وہ سارا دن گلیاں اور بازاروں میں مارا پھرتا رہا، اسے کسی نے بھی کام نہ دیا۔ وہ افسردہ حالت میں اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ ماں نے جب اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا تو اسے سب کچھ سمجھ آ گیا۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا آج کل حالات ٹھیک نہیں، تم کسی کے پاس مزدوری کرنے کی بجائے کوئی اپنا کام شروع کیوں نہیں کر لیتے؟ موسیٰ نے اپنی والدہ سے کہا، میں ابھی اسی قابل نہیں ہوں کہ کوئی کاروبار شروع کر سکوں۔ یہ سن کر ماں خاموش ہو گئی اور اپنے بیٹے سے دوسرے کمرے میں پڑا ایک صندوق منگوایا اور اسے کھولنے کے لیے کہا۔ موسیٰ نے جب اسے کھولا تو اس میں کچھ قیمتی زیورات پڑے تھے۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، تم اسے بیچ کے کوئی اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لو۔ موسیٰ نے اپنی والدہ کی بات سنی تو کہنے لگا، اماں جی، کاروبار تو پھر بھی شروع ہوتا رہے گا، پہلے میں اس زیور کو بیچ کر آپ کا علاج کرواتا ہوں۔ تو اس کی ماں کہنے لگی، نہیں بیٹا، اب شاید میرا وقت پورا ہو چکا ہے، اب میری گنتی کی سانسیں رہ گئی ہیں، اور ویسے بھی تم نے اس زیور کے پیسے میرے علاج پر لگا دیے تو گھر میں کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، ابھی تمہارا کاروبار کا ہونا ضروری ہے۔
खैर अगले दिन मूसा जेवर बेचकर घर वापस आ गया। उसके हाथ में कारोबार शुरू करने के लिए एक मुनासिब रकम थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कौन सा कारोबार शुरू करे। बाजार में कोई उसे दुकान भी नहीं दे रहा था, तो उसने फैसला किया कि वो कोई ऐसा काम करेगा जिसके लिए उसे दुकान की जरूरत ना पड़े। वो उसी सोच में मुब्तला था कि उसे अपने घर में एक पुराना दरख्त दिखाई दिया। उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने फौरन उस दरख्त को काटा और उसकी लकड़ियों से कुछ तख्ते बनाकर उसके लिए एक हिसाबे खाना तैयार किया और उसे बाजार में ले जाकर एक घोड़े पे रख दिया। और उसके पास जो पैसे थे उसने उन पैसों से एक बकरा खरीदा और उसे कुर्बानी करना आती थी, इसलिए उसे ज़िबा करके अपने फट्टे पर रखकर उसे बेचने लगा। कुछ ही दिनों में उसका कारोबार चलने लगा, क्योंकि वो एक नहायत ईमानदारी से काम करता था। सारा दिन गोश्त बेचता और शाम के वक्त थोड़ा सा गोश्त बचाकर अपनी वालदा के लिए भी ले जाता। और सारा दिन में वो जितने भी पैसे कमाता उसमें से अपनी दुकान की ज़रूरत के लिए भी पैसे अलहदा कर लेता, और बाकी जो उसे पैसे बचते उससे अपनी वालदा की दुआ खरीदता और कुछ पैसे अपनी वालदा के हाथ में थमा देता। मूसा की माँ अपने बेटे से बेहद खुश हुई और अपने बेटे को ढेरों दुआएं देने लगी। उसके बेटे ने सारी जिम्मेदारी संभाल ली। कुछ दिनों बाद उसकी वालदा ने एक रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी। मूसा की बीवी भी मूसा की तरह बहुत पारसा खातून थी। वो अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी और उसके साथ ऐसा रवैया रखती कि जैसे वो अपनी वालदा के साथ हो। मूसा की वालदा अपने बेटे और बहू से बहुत खुश थी। एक दिन मूसा की माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई। उसने अपनी माँ को इस हालत में देखा तो वो अपनी माँ के कदमों में गिर गया और माँ के पैरों को पकड़कर रोने लगा। मूसा की वालदा अपने बेटे से कहने लगी, बेटा मेरा वक्त बहुत करीब है, ये दुनिया फानी है जहाँ कोई भी हमेशा रहने के लिए नहीं आया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मूसा ने अपनी वालदा से कहा, अम्मा जान, मैं आपकी इतनी खिदमत तो नहीं कर सका जितनी मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझसे खुश हैं। मूसा की माँ बेटे से कहने लगी, बेटा जिस तरह दूसरे बेटों ने मेरा दिल तोड़ा है, उन दुखों से चूर होकर शायद मैं इतना ना जी सकती। मैंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन जो अच्छे गुजारे हैं वो तुम्हारे प्यार और देखभाल की वजह से गुजारे। तुमने और तुम्हारी बीवी ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे सारे गम दूर हो गए। तुमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं तुमसे राजी हूँ। अल्लाह तुम्हें इतना दे कि जितना कारून का खजाना था। बेटा तुम्हें कभी किसी का मोहताज ना करे। मेरी दुआ है कि वक्त के बादशाह भी तुम्हें सलाम करे। और बेटा मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ कि अपने वालिद को ढूंढने की कोशिश करना, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। मूसा ने अपनी वालदा की बात दिल पर लिख ली। कुछ दिनों बाद मूसा की वालदा का इंतकाल हो गया। मूसा ने अपनी वालदा के इंतकाल की खबर अपने भाइयों को भी दी, जिनके पास अपनी माँ छोटे भाई के लिए कोई टाइम नहीं था। आज अपनी वालदा के जनाजे में शिरकत के लिए आ गए और अपने भाई बढ़ चढ़ कर कहने लगे कि वालदा के कफन दफन और मेहमानों के लिए जो भी अखराजात होंगे हम खुद उठाएंगे। मूसा ने उन्हें मुंह टोक जवाब दिया और कहने लगा, माँ तो तुम्हारे पैसों की जरूरत उस वक्त थी जब वो सांसें ले रही थी। आज उसे तुम्हारे पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके पैसों से कफन पहन रही है। तो तुम्हें तुम्हारे कारोबार और दिनार मुबारक हों। उसके बाद मूसा ने अपनी वालदा की आखिरी रस्म अदा की और बड़ी अफसरदा हालत में अपने घर वापस आ गया। अपनी वालदा के इंतकाल के बाद मूसा बहुत परेशान रहने लगा। वो सारा दिन अपने घर में वालदा की याद में रोता रहता, क्योंकि उसकी वालदा ही उसके लिए सब कुछ थी। मूसा की बीवी उसे दिलासा देती, उसे समझाती कि मूसा इस दुनिया में कोई भी हमेशा रहने के लिए नहीं आया। आप अपने कारोबार में ध्यान देने के साथ साथ अपनी वालदा के साले सवाब के लिए भी कोई रास्ता बनाए। चनाचा वो दिल लगाकर मेहनत करने लगा। जो भी पैसे कमाता उसमें से कुछ पैसे अपनी वालदा के एसाले सवाब के लिए सदका कर देता और गरीबों की मदद भी बढ़ चढ़ कर करता। कुछ ही दिनों में उसने बाजार में एक दुकान खरीद ली। उसने कपड़े का कारोबार शुरू कर दिया। उसने कारोबार में इतनी तरक्की की कि एक बहुत बड़ा ताजर बन गया। वो जिस कदर अमीर होता रहा, इस कदर अल्लाह की राह में भी खर्च करता रहा। अल्लाह को उसका ये अमल इतना पसंद आया कि एक दिन उसे इस बाजार का वाहिद मालिक बना दिया, जिस बाजार में उसे किराए के लिए भी कोई दुकान नहीं देता था। वो अपनी सखाफत की वजह से पूरे शहर में मशहूर होता चला गया, इसलिए बादशाह भी उसे इज्जत की निगाह से देखते थे। और वो कभी कभी तो बादशाह भी उसकी उस बात पर हैरान हो जाते कि इतनी सखावत तो वक्त के बादशाह भी नहीं करते।
जितनी सखावत मूसा करने लगा है। अब मूसा के दूसरे भाइयों का हाल सुनिए, जो अपने कारोबार को अपना सब कुछ समझते थे। वक्त की ठोकरें लगने से उनका कारोबार मिट्टी में मिलने के बराबर हो गया। वो जो भी कारोबार करते उन्हें उसमें नुकसान होने लगा। वो दर दर की ठोकरें खाने लगे। उनकी गुर्बत का ये आलिम था कि गुजर बसर करने के लिए उनके पास एक वक्त का खाना भी मौजूद नहीं था। मजबूरन उन्हें अपने भाई मूसा के घर पर जाना पड़ा। आज उनका गरूर खाक में मिल चुका था। आज वो अपनी की गई इस हरकत की वजह से बहुत शर्मिंदा थे कि मूसा बेयारो मददगार उनके दर पर पहुंचा था तो उन्होंने उसको ठोकर मार दी थी। और आज जब उनके पास खुद कुछ नहीं था, आज मूसा के दर पर आ चुके थे, लेकिन मूसा ने उनकी तरह उनके साथ कमजरफी का मुजाहिरा नहीं किया, बल्कि अपने भाइयों की मदद की। मूसा के इस रवैये की वजह से वो और भी ज्यादा शर्मिंदा हुए। मूसा इतना अमीर हो गया कि वो न सिर्फ अपने गांव में ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करता, बल्कि उसके पास के गांव में भी जाकर गरीबों की मदद करता। एक दिन इसी सिलसिले में वो लोगों की मदद करने के लिए दूसरे शहर में पहुंचा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा फकीर नजर आया। मूसा फौरन उस बूढ़े फकीर के पास पहुंचा और उसका हाल दरियाफ्त करने की कोशिश की। शक्लो सूरत से वो बूढ़ा फकीर बहुत भूखा लग रहा था। मूसा ने उसको खाना खिलाया और उसके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आया। बूढ़ा फकीर मूसा के इस रवैये से बहुत मुतासिर हुआ और उससे पूछने लगा, बेटा तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? मूसा ने बूढ़े फकीर को अपना नाम बताया कि बाबा जी मेरा नाम मूसा है। जब इसने बूढ़े को अपना नाम बताया तो उस बूढ़े की एक दर्द भरी आह निकली और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मूसा ने उसे रोकते हुए देखा तो उसे चुप करवाने लगा और उनसे पूछने लगा कि बाबा जी आप क्यों रो रहे हैं? तब उस बूढ़े ने मूसा से कहा, बेटे मेरे सबसे छोटे बेटे का नाम भी मूसा था। मुझे अपने बेटे की याद आ गई। मुझे उससे बिछड़े हुए 25 साल हो गए। मूसा ने इस बाबा से पूछा, आप मुझे बताएं कि आपका बेटा कहाँ रहता है, मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। तो उस बूढ़े ने जवाब दिया, बेटा मुझे अपने बेटे की कोई खबर नहीं, क्योंकि उस वक्त वो बहुत छोटा था जब मैं उसे घर में छोड़कर रोजगार के सिलसिले में दूसरे शहर में निकला था। मगर जब दूसरे शहर में पहुंचा तो एक ताजर ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और मुझे इस चोरी के इल्जाम में 25 साल के लिए कैद हो गई। 25 साल कैद में गुजारने के बाद आज मैं आजाद हुआ हूँ। मूसा ने जब बुजुर्ग की बात सुनी और मूसा का दिल भी पसीज गया तो मूसा ने उस बुजुर्ग से पूछा कि आपका नाम इसहाक है? वो बुजुर्ग हैरान रह गए और पूछने लगा, बेटा तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मूसा एकदम से उस बुजुर्ग के पाँव में गिरकर रोने लगा और कहने लगा, बाबा जान मैं ही आपका बेटा हूँ। मेरी माँ ने मरने से पहले सच कहा था कि बेटा अपने बाप को तलाश करना। मेरा दिल कहता है कि वो अभी भी जिंदा है और अल्लाह का शुक्र है कि आज आप मुझे मिल गए। दोनों बाप बेटा एक दूसरे से गले लगकर काफी देर तक रोते रहे। मूसा ने अपने बाप को साथ लिया और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। सारे शहर का हाल बदल चुका था। खैर जब वो घर पहुंचे तो वो बुजुर्ग उस महल नुमा घर को देखकर कहने लगा, बेटा ये हमारा घर तो नहीं है। मूसा ने बताया कि ये सब मेरी माओं की दुआओं का सिला है। वो बुजुर्ग अपना इतना बड़ा आलीशान घर देखकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद उसने अपने 2 बड़े बेटों के बारे में पूछा तो मूसा ने अपने भाइयों का सारा किस्सा बाप को सुना दिया। बड़े बेटों के बारे में सुनकर वालिद का दिल बहुत रंजीता हुआ और कहने लगा, मूसा वाकई ही तुमने मेरा बेटा होने का फर्ज अदा किया। वो तुमसे बड़े थे, उनका हक तो बनता था कि वो बाप की जगह तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करते, लेकिन उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को अकेला छोड़ दिया और आज उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है मुझे उन पर कोई पेशेमानी नहीं। मैं उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। तुम मुझे अपनी माँ की कब्र पर ले चलो। मूसा अपने वालिद को अपनी माँ की कब्र पर ले गया। मूसा के वालिद ने जब अपनी बीवी की कब्र देखी तो वो रोने लगा और उससे मुखातिब होकर कहने लगा, सफिया बेगम मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देर हो गई, मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा सका। जिस दर्द से तुम गुजरी हो इसके सामने मेरी 25 साल कैद भी कुछ नहीं। इस कैद में मुझे कभी भी अपनी हालत की फिक्र नहीं हुई। मैं तो हर वक्त इस फिक्र में मुब्तला रहता कि तुमने पता नहीं अपने बच्चों को कैसे पाला होगा। तुमने माँ होकर एक बाप का हक अदा किया। आज तुम्हारे बेटे ने पूरे बगदाद में हमारा नाम रोशन कर दिया। खुदा तुम्हें जन्नत अता करे। उसके बाद वो बुजुर्ग अपने मूसा बेटे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। प्यारे नाजरीन, इस किस्से से हमें 3 कीमती सबक मिलते हैं। नंबर 1 के बच्चों को कभी भी अपने वालिदैन को बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब वक्त का पहिया घूमता है तो कल तो आप भी इसी जगह पर होते हैं जहाँ वालिदैन आपसे मोहब्बत और तवज्जो का रवैया इख्तियार करना चाहते हैं। ना सिर्फ आपके मुस्तकबिल को रोशन करता है बल्कि आखिरत में भी आपके लिए बेशुमार इनामात है। वालिदैन
چاہے جیسے بھی ہوں ان کی خدمت اولاد کا فرض ہے، کیونکہ ان کی دعائیں ہی آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ نمبر 3، خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان کبھی بھی غریب نہیں ہوتا، اور خدا انسان کو اتنا نوازتا ہے کہ جس کا وہ شمار بھی نہیں کر سکتا۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔